Praise the Lord, brothers and sisters, for this morning. God willing, we'll meditate on what is the Lord's purpose when He sends trials and suffering in our life. आज की सुबह हम मनन करेंगे इस विषय के ऊपर कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है दुख तकलीफ के मध्य से जब हम गुजरते हैं उससे. Many times we think God is like a hard taskmaster. He doesn't understand what we go through. और अनेक बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर एक कठोर कार्य करवाने वाला व्यक्ति है और इसलिए हम उसके उद्देश्यों को नहीं समझ पाते हैं. Beautifully he says to consider it all joy when we encounter various trials. और जो याकूब है बड़ी ही खूबसूरती से कहता है कि जब तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो. Is it possible to live such a life where we consider it all joy when we encounter trials? If it were not possible, God would not have wasted His time writing it in His Word. और यदि यह संभव नहीं होता कि इन सारी परीक्षाओं से जब हम गुजर रहे हैं उसमें आनंद मनाना, तो परमेश्वर इस बात को अपने वचन में लिखवा करके समय की बर्बादी नहीं करता. Ultimately, after the trials, God can see His image in us. Sorry, brother. After the trial, before the trial, we have so many impurities like a gold. But after the gold is put into the fire, it is purified, it becomes so pure that God can see His image in us. और जो परीक्षा आती है उसके आने के पहले हम अशुद्ध सोने के समान होते हैं, परंतु जब परमेश्वर हमें परीक्षा से गुजारता है तो ठीक जैसे सोना स्वच्छ हो जाता है वैसे ही परमेश्वर हमें जब स्वच्छ कर लेता है तो वह अपने स्वरूप को हम में देख पाता है. In 1 Peter 1, it's a wonderful verse there. It says, it is the genuineness of our faith that is tested by fire through trials. और वहां पे लिखा है कि यह हमारे विश्वास की वास्तविकता है जो अग्नि के द्वारा परखी जाती है. What is the result? It says the result is that it may result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus, that God might be glorified and honored. और इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम यह है कि यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर की आदर, महिमा और स्तुति होती है. So, like it says in verse 8, that we might have that joy that is inexpressible. और जैसे कि वहां पे कहा गया है कि वर्णन से बाहर या अवर्णनीय आनंद को हम प्राप्त कर सकें. You remember that well-known verse in Psalm 66. और हम उस जाने पहचाने वचन को याद करते हैं जो पाया जाता है भजन संहिता और उसके 66 अध्याय में. Verses 10 to 12. और उसके 10 से 12 वचन में. It says that the Lord He refines us. It says it is the Lord who tries us. It is the Lord who refines us as silver is refined. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ही है जो हमें जांचता है और परमेश्वर ही है जो हमें चांदी के समान ता करके शुद्ध करता है. Into a net, verse 11, and He lays a burden that is oppressive. और 11वें वचन में यहाँ पे जो लिखा है कि वह एक ऐसे बड़े बोझ को हमारे कंधों के ऊपर बांध देता है. To a net. Net means you can't move freely. और वहां पे लिखा है हमें एक जाल में फंसाता. जाल का अर्थ है कि हम स्वतंत्रता से इधर उधर घूम नहीं पाते हैं. As parents, we experience that the time when you want to take rest, that's when the children need some help from us. You can't do freely what you want to do. You're always in a net. और एक माँ बाप होने के नाते हम जान सकते हैं कि जब हम विश्राम करना चाहते हैं ठीक उसी समय बच्चों की कोई आवश्यकता हो जाती है, तो उस परिस्थिति में हम अपने आप को उस जाल में फंसा हुआ पाते हैं. Lord, you brought us into the net. That is what should encourage us. और हमें इस बात से प्रोत्साहित होना चाहिए कि यह प्रभु है जिसने हमें उस जाल में फंसाया है. Goes on to say in verse 12, men ride over our heads, which means people may insult us, misunderstand us. और 12वें वचन में कहता है कि उसने घुड़चढ़ों को हमारे सिर के ऊपर से चलाया है. उसका अर्थ यह है कि लोग हमें गलत समझ सकते हैं, हमारी मखौल उड़ा सकते हैं.
wonderful promise is that finally the Lord brings us to a place of abundance. और अद्भुत प्रतिज्ञा उसके बाद यह है कि परमेश्वर हमें एक बहुतायत के स्थान पे लेकर आता है। The wonderful promise in Isaiah 42, it says, the Lord will be with us when we go through the waters, through the fire, when we walk on the fire, He will be with us. और अद्भुत प्रतिज्ञा यह है जो परमेश्वर ने हमसे कही कि जब हम पानी से होकर के जाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, जब हम आग से होकर के गुजरेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें बचाएगा। Place of abundance where life is overflowing with God's life and it blesses others. और बहुतायत का जो स्थान है वह एक उमड़ने वाले का स्थान है जहां पे जीवन जो है वो बस उमड़ के बह रहा है। Three young people, Shadrach, Meshach and Abednego, who worshipped God when they were in a trial, fiery furnace. हम तीन जवानों के विषय में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन्होंने परमेश्वर की आराधना तब किया जब यह परीक्षा की घड़ी में थे। They did not bow down to the golden image. और वे लोग उस स्वर्ण जो मूर्ति थी उसके आगे नहीं झुके। Godly people said, our God is able to deliver, but even if He doesn't answer our prayer, we will still not compromise. We will not bow down. और वे ऐसे लोग थे जो ईश्वरी भक्ति वाले लोग थे और उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है और यदि परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा तो भी हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। Wonderful picture where three young men standing up for the Lord when everybody else is compromising all around. और बहुत ही अद्भुत चित्र है तीन जवान व्यक्तियों का जब हर व्यक्ति वहां पे समझौता कर रहा है, तो ये जो तीन लोग हैं यह परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं। Chose to yield their bodies to the Lord to worship God, like it says in Daniel 3:28. और जैसे दानियल की पुस्तक उसके 3:28 में कहता है, वे जो अपने तन को परमेश्वर की आराधना के लिए सौंप देते हैं। What we did few minutes ago is not worship, that is only praise and singing. But these people knew what it means to worship, who lived in the old covenant, to give my body to the Lord as a living sacrifice. That is worship. और जो हम करते हैं वह केवल स्तुति गाना और धन्यवाद देना होता है, परंतु ये जो लोगों ने किया, या जैसा हम रोमियो 12 में पढ़ते हैं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाना, यही जो कार्य है वही आराधना होती है। Well, before it was even written to give our bodies to the Lord as a worship. Sorry, brother. They knew what it means to worship before Romans 12 was written. और इससे पहले कि रोमी 12 अध्याय लिखा जाता, ये लोग जानते थे कि परमेश्वर की आराधना करना क्या होता है, अर्थात अपने शरीरों को परमेश्वर को अर्पण करना। Three of them were thrown into the fire by the king in anger. और ये जो तीन लोग थे ये राजा के क्रोध के द्वारा उस आग की भट्ठी में बांध करके फेंक दिए गए थे। Came down from heaven to receive their worship. The fourth person there is Jesus. और जब इन्होंने आराधना किया तो परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया और जो चौथा व्यक्ति उनके मध्य में उपस्थित है वह स्वयं यीशु मसीह है। What happened to these three young men before they were thrown into the fire? They were tied up with ropes. After they thrown into the fire, they came out without the ropes. The ropes were burnt up by the fire. और इनके विषय में बात यह है कि जब ये लोग आग की भट्ठी में डाले गए तो ये लोगों को रस्सी से बांधा गया था, परंतु जब ये लोग भट्ठी से बाहर आए तो वह जो रस्सी जिनसे इन्हें बांधा गया था वह जल करके राख हो गई थी। Yes, brothers and sisters, when the Lord puts us into a fiery furnace of trial, it is only to set us free from the things that are binding us, pulling us to this earthly life. और ऐसे ही भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमें ऐसे ही परीक्षा रूपी भट्ठी में से गुजारता है तो वह इसलिए है कि जो चीजें हमें बांध करके रखती हैं वे चीजें जो हैं उस भट्ठी की आग में जल जाएं। What a wonderful testimony! People living in the old covenant, living in the standard of new covenant. और कितनी अद्भुत बात है कि वे लोग जो पुरानी वाचा में जीवन जी रहे थे वे नई वाचा के जीवन का प्रदर्शन कर रहे थे। God doesn't answer our prayer; He will still not compromise and bow down to other gods. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तब नहीं देगा जब हम समझौता करके दूसरे ईश्वरों के आगे दंडवत करेंगे। First book written was the book of Job in the Bible. और बाइबल में जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई वो अय्यूब की पुस्तक थी। This man, he worshipped not when everything was going fine, but when he lost everything, he worshipped God. और यह जो व्यक्ति था इसने परमेश्वर की आराधना तब किया जब इसने अपना सब कुछ गंवा दिया था।
says so beautifully in Job 122, all this Job did not sin nor did he blame God. Do we know that when we blame God, we are actually sinning? और अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 22 वचन में बड़ी ही खूबसूरती से लिखा, इन सब बातों के बावजूद भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, क्योंकि जब भी हम दोष लगाते हैं तो हम पाप करते हैं। Yeah. So many times when we blame God, we are actually sinning. We blame Lord, why did you send this trial? Why did you send that person in my life? Many times we blame God. That's actually a sin in the eyes of God. और जब कभी हम दोष लगाते हैं परमेश्वर के सामने आकर के ऐसा कहते हुए कि क्यों तूने इस परिस्थिति को मेरे जीवन में आने की अनुमति दी, या उस व्यक्ति को क्यों हमारे जीवन में आने की अनुमति दी, तो ऐसा करने के माध्यम से हम परमेश्वर के सामने पाप करते हैं। And it says that in Job chapter 2 verse 10, in all this he did not sin with his lips. और अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपनी जुबान से कोई पाप नहीं किया। You know when it is written, those words? और ये वचन कब लिखे गए हैं? When his wife came to accuse him, why don't you curse God and die? In that context it is said, in all this he did not sin with his lips. और ये वचन उस समय लिखे गए हैं जब उसकी पत्नी उसके पास आकर के कहती है कि अब तू परमेश्वर की निंदा कर, और इन सब चीजों के बावजूद भी होने के बावजूद भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। Yeah, when we go through trials, the instrument we use the most to sin is our mouth, is our lips. और जब हम परीक्षा प्रलोभन से होकर के गुजरते हैं तो जिस अंग का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वह है हमारी जुबान का, अर्थात पाप करने के लिए। In Malachi chapter 3, the Lord says, I will sit as a refiner's fire to refine you and purify you. और मलाकी 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं एक भट्ठी में शुद्ध करने वाले अग्नि के समान, और जैसे एक भट्ठी में जो शुद्ध करने वाला व्यक्ति उसके समान मैं वहां पे कार्य करूंगा। Those words are written in the context of the previous chapter, Malachi chapter 2 verses 13 to 17, where it talks about husband-wife relationship. That is where the Lord wants to purify all of us in our marriage. और यह जो वचन है या इसके पिछले अध्याय जो मलाकी 2 अध्याय 13 से 17 में है, वह पति और पत्नी के संबंध और वैवाहिक संबंध के दृष्टिकोण में लिखा गया है कि परमेश्वर वहां पे हमें शुद्ध करना चाहता है। Let's remember, Job did not have a Bible, no fellowship, nobody to stand with him, not his 3 friends, not his servants or his wife, nobody. He was all alone. और आप अय्यूब के विषय में याद रखें कि उसके पास कोई संगति नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक कि उसके 3 दोस्त भी जो आए वो भी उसका कोई सहायता ना कर पाए, ना कोई उसके सेवक थे, कोई भी नहीं था, वह पूरा अकेला था। Yeah, when others irritate us, the Lord is wanting to purify us. और जब दूसरे लोग हमें आकर के तंग करते हैं या सताते हैं तो उनके माध्यम से परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। Not sin with our lips. What is this, Lord? Is this how you treat me? What kind of husband you gave? What kind of wife you gave? What kind of relatives you gave? No blaming God at all. That's how Job lived. और अय्यूब ने अपने जुबान से परमेश्वर को दोष नहीं दिया, जैसा कि कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि क्यों तूने ऐसे पति को मुझे दिया या ऐसी पत्नी मुझे दी। Yeah, where is our hope and joy set on, brothers and sisters? Let us all examine ourselves. भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को जांच करके देखें कि हमारी आशा और हमारा आनंद कहाँ पे स्थापित है। Acts chapter 16, we read 2 groups of people. One is the earthly minded people, the other is the godly minded people. प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम 2 प्रकार के लोगों के विषय में पढ़ते हैं। एक प्रकार के लोग वे जिनका दिमाग संसार की वस्तुओं पे लगा था, और दूसरे वे लोग जिनका मन परमेश्वर की बातों पर लगा हुआ था। Possessed girl who was bringing a lot of when she was delivered, it says their masters had lost or their hope of profit was gone. और वहां पे एक स्त्री थी, और जब उसका छुटकारा हुआ तो उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही है। Picture of those of us who lost our profit or job or salary or business. और यह हम उन लोगों का चित्र है जिन्होंने अपने पैसे को, नौकरी को या तनख्वाह को खोया है। People, their hope and happiness was and faith was set on money and their job and salary.
और ऐसे लोग जिनके जो आशा है, खुशी है और आनंद है, यह उनके पैसे और तनख्वाह पे निर्भर करती थी। When the hope of profit was gone, when they lost the job or business, they became so restless and angry, and they were beating Paul and Silas so mercilessly. और जब इन लोगों की कमाई की आशा या तनख्वाह की आशा जाती रही तो ये लोग बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के इन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ करके बहुत पीटा। He was pointing finger at both of them. Because of you, we lost our business, our profit. They were so angry. और इन लोगों ने पौलुस और सिलास की ओर अपने उंगली फेर करके कहा कि तुम लोगों की वजह से हमारी जो कमाई है, जो हमारा जो व्यवसाय है, वह चौपट हो गया है। This is the earthly minded people's reaction to suffering. और यही तो सांसारिक लोगों का दृष्टिकोण रहता है दुख और तकलीफ के लिए। And we see the godly people, how they responded when they went through suffering. और हम ईश्वरी लोगों को देखेंगे जब उनका क्या प्रतिक्रिया हुआ जब वे इस परीक्षा से होकर के गुजरे। Think of this, brothers, when you go to a marketplace, when people drag you in front of everybody and beat you with rods and put you in prison for no reason, how will you feel? और आप इस बात की कल्पना करके देखिए कि जब आप एक कोई बाजार स्थल में जा रहे हैं और वहां पे लोग आपको मार रहे हैं डंडों से और उसके बाद बंदीगृह में डाल दे रहे हैं बिना आपकी कोई गलती के, तो आपको कैसा महसूस होगा। Paul and Silas, their faith and joy was set on Jesus, not on money or things of this earth. और पौलुस और सिलास ये जो व्यक्ति थे, इनका जो विश्वास और आशा थी यह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्थापित थी, ना कि सांसारिक वस्तुओं के ऊपर अर्थात पैसा और तनख्वाह। Paul and Silas, they reacted in such godly way. In the middle of the night, they were rejoicing, they were praising God. और पौलुस और जो सिलास थे, इन्होंने इतने अद्भुत रीति से प्रतिक्रिया दिखाई कि मध्य रात्रि में यह लोग पूरे विश्राम में थे, आनंद से भरे थे और आनंद मना रहे थे। They're not staying in a five-star hotel with an air conditioner there. They were in a prison surrounded by hard-hearted criminals. और ये लोग जो थे, ये कोई 5 स्टार होटल में एयर कंडीशन कमरे में आराम से नहीं थे, परंतु यह एक ऐसे बंदीगृह में थे और उनके आसपास सब कठोर हृदय वाले व्यक्ति थे। Amazing thing is, none of them were getting upset. The other prisoners, it says they were all listening. They have never tasted such spirit of heaven in their life. They were tasting the spirit of Christ, praising God when they were going through severe trials. Sorry, brother. The other prisoners, it says they were listening to Paul and Silas. They were not upset with Paul and Silas for disturbing their sleep in the midnight. Okay. बाकी जो बंदीगृह में जो कैदी लोग थे, ये लोग बड़े आनंद से पौलुस और सिलास की सुन रहे थे और वे इस बात से नाखुश नहीं थे कि उनकी रात की नींद इन लोगों की वजह से खराब हो गई है। You see that in the midnight somebody puts a loud music. Our neighbors will come and say, "Why are you creating a nuisance?" These prisoners did not say that. और हम देखते हैं कि जब कभी हम कोई जोर से गाना बजाते हैं तो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं वो आकर के कहते हैं कि आप क्यों यहाँ पे तमाशा खड़ा कर रहे हो, क्यों दूसरों के लिए समस्या खड़ा कर रहे हो। When the earthquake came, everybody chains fell. Not even a single prisoner escaped. और उसके बाद जो भूकंप आया उससे यह हुआ कि हर एक व्यक्ति, हर एक जो कैदी थी उसकी जंजीर नीचे गिर गई, फिर भी उसमें से कोई भी व्यक्ति बाहर भाग कर नहीं गया। They tasted that spirit of heaven, the spirit of Jesus from Paul and Silas. They did not want to leave the prison. They wanted to stay there. क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को महसूस किया था पौलुस और सिलास के माध्यम से, इसी वजह से वे उस जगह से भाग करके बाहर नहीं जाना चाहते थे। The spirit of heaven, people are always praising God. They are looking at the Lord. They are not grumbling and complaining, sitting with gloom. और जो स्वर्ग की आत्मा यदि है तो वहां पे जो लोग हैं वे लोग कभी भी उदास और निराश नहीं बैठे रहेंगे, परंतु वे हमेशा हर्षित और आनंदित रहेंगे। That is heavenly mindedness. और यही तो है स्वर्गीय मन होना। Not just knowing the Bible verses in our head. और सॉरी ब्रदर, Not just merely knowing Bible verses in our head. आई डिडंट गेट यू ब्रदर। Not just merely having Bible knowledge in our heads. और केवल अपने दिमाग में बाइबल का ज्ञान रखना नहीं। I just want to share two examples that really challenged me in the history of the church. Two saints. और मैं आपके सामने दो उदाहरण को रखना चाहूंगा जिसने मुझे बहुत चुनौती दी, जिसे हम कलीसियाई इतिहास में पढ़ते हैं। Like it says in Job 23:10, when the Lord tests me,
puts me into trial, I shall comfort as gold. और जैसा अय्यूब की पुस्तक उसके 23 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर मुझे परीक्षाओं से होकर के गुजारेगा तो मैं वहां से सोने के समान उभर करके बाहर निकलूंगा। First person is Amy Carmichael. और पहली जो व्यक्ति है वो है एमी कार्माइकल। She went through intense suffering the last 20 years of her life, from 1931 to 1951. और ये जो थी, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अर्थात अंतिम 20 वर्षों में बहुत ही घनघोर यातना से और पीड़ा से होकर के गुजरी, जो समय था 1931 से लेकर के 1951 तक का। In one morning, she prayed this prayer in 1931, Lord, do as you will in my life. Do anything, Lord, that will fit me to serve you and help you. Help others. और एक 1931 की एक सुबह उन्होंने इस रीति से प्रार्थना किया था कि प्रभु, जो भी तुझे उचित लगे कि जिस रीति से मैं तेरी सेवा करूं, उसके अनुसार तू मेरे साथ व्यवहार कर, जैसे तेरी इच्छा होवे। She accidentally fell into a ditch. She broke her leg, dislocated her ankle, and later she had severe arthritic pain in her spine. और उसी दिन वह एक गड्ढे में गिर गई, उसके वजह से उनके पांव टूट गए और जो उनका जो एड़ी थी वह डिसलोकेट हो गई और उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में अर्थराइटिक पेन आने लगा। 18 years she was confined to only her room, her house, and the last 2 years she could not even get out of her bed, but the whole world was blessed by her, even though she did not move out of her house. और अपने जीवन के 18 वर्ष उसके बाद के वह केवल एक कमरे में ही रही और उसके बाद के जो 2 वर्ष थे वह केवल एक बिस्तर पे ही गुजारी, परंतु पूरा संसार उनके माध्यम से आशीषित हुआ, यद्यपि वह कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं निकली। Those were the most blessed years in her life. और यह जो वर्ष थे उनके जीवन के सबसे ज्यादा आशीषित वर्ष रहे। Once she took the children to a goldsmith to show about the gold purifying. और एक बार उन्होंने बच्चों को एक सुनार के पास लेकर के गई और यह दिखाने के लिए कि कैसे सोना जो है वह साफ किया जाता है। And the goldsmith said, and she asked the goldsmith, how do you know when the gold is pure? और उन्होंने उस सुनार से पूछा, आप कैसे जानते हैं या जान पाते हैं कि कब वह समय आया कि सोना शुद्ध हो गया है? And the goldsmith told Amy Carmichael that I know it is pure when I can see my own face in the gold. और उस सुनार ने कहा, जब मैं अपने चेहरे को उस सोने में देख पाता हूं तब मैं जान जाता हूं कि यह जो सोना है अब शुद्ध हो चुका है। When the Lord sees his own image in our life, that's when we can know that we are also pure. और जब परमेश्वर अपनी ही स्वरूप को हमें हमारे जीवन में देख पाता है, यही वह समय है जब हम इस बात को जान पाते हैं कि हम शुद्ध हो चुके हैं। And the second person is Watchman Nee. He also suffered for 20 years in the jail. और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो है वॉचमैन नी और यह भी 20 वर्ष तक जेल की यातना में इन्होंने दुख उठाया है। As a young man, he was put out of the church and he never spoke anything bad about the elders of the church. और एक जवान व्यक्ति होने के नाते उन्हें कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया था, परंतु कभी भी उन्होंने उस कलीसिया के व्यक्तियों के विषय में कोई भी बात अपने मुख से उनके विरोध में ना कही। And later he was falsely accused by people where they were drawing cartoons about Watchman Nee in the public. और उसके बाद उन्हें लोगों के द्वारा गलत और झूठा दोषारोपण लगाया गया, जहां पे जो लोग थे उनके विषय में कार्टून के चित्र बना रहे थे। The cartoons were like this, where Watchman Nee would take money from the offering box and go to the prostitutes and give them that money. Just imagine what kind of suffering he went through. और जो कार्टून का चित्र था वो इस प्रकार का था कि वॉचमैन नी जो है वो दान पेटी से पैसे को निकाल रहा है और उस पैसे को निकाल करके वह वेश्या के काम के लिए दे रहा है, और आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की वेदना से वॉचमैन नी होकर के गुजरे थे। He was the purest man probably in China, but they accused him like this. और चाइना में उस समय वह सबसे शुद्ध व्यक्ति रहे होंगे, परंतु उनके ऊपर इस प्रकार से दोषारोपण किया गया था। And when he was jailed for his faith in Jesus, the other inmates used to say that Watchman Nee used to sing love songs to the Lord, sing hymns to the Lord. और जब अपने विश्वास के लिए वॉचमैन नी को जेल में डाला गया था, तो जो उनके संगी कैदी थे वह कहते थे कि जो वॉचमैन नी है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के गीत गाता है, उनके भजन गाता है। And
the real secret is that he knew the God of the word, not just the word of God in the head, but he knew the God of the word. और इन सब चीजों का रहस्य यह था कि वॉचमैन नी जो थे वह इस वचन के परमेश्वर को जानते थे, ना कि केवल वचन को अपने दिमाग में, परंतु इस वचन में जो परमेश्वर है उसे वो अच्छे से जानते थे। He lived a life glorifying the Lord. और उन्होंने परमेश्वर को महिमा देते हुए एक जीवन जिया। You remember, out of the 7 churches, only 2 churches the Lord was happy in book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम स्मरण करते हैं कि 7 कलीसिया में से केवल 2 ही कलीसिया थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न था। Smyrna and Philadelphia. The common thing about both the churches is both churches had suffering and tribulation and testing. और जो 2 कलीसिया थी वो स्मरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी, और दोनों ही कलीसिया में एक समान बात थी, और वह समान बात यह है कि दोनों ही कलीसिया कष्ट और तकलीफ से गुजर रही थी। Where the Lord says, I know your tribulation, I know your poverty, but you are rich in my eyes. जहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे तकलीफ को, तेरी वेदना को देख रहा हूं, परंतु तू मेरी दृष्टि में अमीर है। Not like the Laodicean church, they were financially rich, but spiritually pathetically poor, miserable. और लौदीकिया की कलीसिया के समान नहीं, ये लोग आर्थिक तौर पे तो बहुत संपन्न थे, बहुत अमीर थे, परंतु आत्मिक तौर पे पूरे रीति से गरीब थे। So the Lord asks us to be faithful to me when you go through trials. I'll be with you. I will not leave you alone there. और इसलिए परमेश्वर मुझसे कहता है कि जब तू परीक्षा की घड़ी से होकर के गुजरे तो विश्वास योग्य बना रहे, क्योंकि मैं तुझे उस घड़ी में नहीं छोड़ूंगा। Like the Lord said those wonderful words at the breaking of bread in Luke 22:28, you are those who stood by me in my trials. और लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ते समय एक खूबसूरत बात कही, और वह यह है कि उन्होंने कहा कि तुम वे लोग हो जो मेरी परीक्षा के घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे हो। Can the Lord say those words to us? You brother and you sister, you have stood with me in my trials. और क्या परमेश्वर इस बात को हमारे लिए कह सकता है कि आप भाई, आप बहन, आप मेरे साथ परीक्षा की घड़ी में खड़े रहे हो। Yeah, the secret is to come back to love. 1 Corinthians 13:4 says, love suffers long and it is kind. और पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसके चौथे वचन में लिखा है कि जो प्रेम है वो बहुत देर तक दुख उठाता है और वह करुणामय है। And we go through little inconvenience, little problem, immediately we complain, we become unkind in our words. But God's word says love suffers long time and is still kind. और जब हम थोड़ी सी भी परीक्षा से होकर के गुजरते हैं तो हम तुरंत अपने शब्दों में हमारा जो दयालुता है वो चली जाती है, हम कठोर से हो जाते हैं, परंतु बाइबल कहती है कि जो प्रेम है वो बहुत देर तक सहता रहता है दुख और कष्ट को, और उसके बावजूद भी वह दयालु बना रहता है। Few minutes inconvenience itself, we start to complain, get impatient. But when the love of God is poured out in our hearts by the fullness of the Holy Spirit, we will be able to suffer for a long time and still be kind. और थोड़े ही क्षण की जब हमारे पास कोई असुविधा आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, परंतु जब परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे दिलों में उंडेला जाता है तो हम उस परीक्षा की घड़ी में दयालु बन सकते हैं। So that we can testify like it says in Mark 7:37, Jesus has done all things well. I don't want to have any complaint. He has done all things well in my life. और जैसा कि मरकुस 7 के 37 में कहा है कि यीशु मसीह ने सब काम को बहुत ही उत्तम तरीके से पूरा किया। Yeah, may the Lord help us, brothers and sisters. और प्रभु हमारी सहायता करे भाइयों और बहनों, that we don't get discouraged or get offended or become bitter against God or blame God when we go through trials. God has a wonderful purpose. कि जब हम परीक्षा से होकर के गुजरे तो हम परमेश्वर के प्रति क्रोधित ना हो या हम परमेश्वर से ठोकर ना खाएं, परंतु हम उसके प्रति धन्यवादी बने रहे, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है इन सब के पीछे। May the Lord help us. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे। Brother, can you hear me? Yes, brother. Thank God for the word today. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए।
let us be honest. None of us welcomes trials in our life. और हम ईमानदार बने रहें, हम में से कोई भी अपने जीवन में तकलीफों को आमंत्रित करना नहीं चाहता है. You know, when there's loss of job or loss of health or loss of finance in the house, and one worries how will one continue to support the family. और जब एक परिवार में नौकरी खो जाती है या किसी प्रकार की आमदनी खो जाती है, तो एक व्यक्ति जो है वो चिंता करने लगता है कि किस रीति से हमारे परिवार की जीविका चलेगी. When trials come, we'll find ourselves having fear and anxiety. और जब परीक्षाएं आती हैं तो हम अपने आप को ऐसा पाते हैं कि हमारे पास भय होता है और हम चिंता में पड़ जाते हैं. We may be found asking ourselves this question, why me, Lord? Why of all the people you have chosen me? I work sincerely in the office. Why me, Lord? और हम अपने आप से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु जी मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने दफ्तर में, अपने कार्यालय में काम करता हूं. They can be despair. Our countenance may fall. We may even doubt God. और वहां पे निराशा हो सकती है, हमारा जो चेहरा है वो लटक सकता है, और कई बार ऐसा समय आ सकता है जहां पे हम परमेश्वर के ऊपर संदेह कर सकते हैं. We say, Lord, where's your love, Lord? और हम कह सकते हैं कि प्रभु जी आपका प्रेम कहाँ रहा? But when we see others going through trials, the thoughts that go through us can be, और जब हम दूसरों को परीक्षा से होकर के गुजरते हुए देखते हैं, तो जो विचार हमारे दिमाग से आते हैं, it must be due to some sin in their lives or God's judgment upon them. तो ये ऐसे विचार हो सकते हैं कि वे इस परीक्षा में इसलिए पढ़े क्योंकि कोई पाप की वजह से परमेश्वर उनका न्याय कर रहा है. Some of our suffering is a product of living in a world that is tainted by sin. और हम में से अनेक लोगों की जो दुख का कारण यह है कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो पाप के द्वारा प्रदूषित है. But some of the trials is a direct result of doing what God's word says to do. और कई सारे जो परीक्षाएं हैं वो उसका स्पष्ट प्रमाण है उस बात का जिसे परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है. Is being obedient to God's word. It is suffering for righteousness' sake. और यह परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के है, और यह धार्मिकता के विषय में दुख उठाना है. Whatever is the source of the trial, we need to know how to handle them. और उस यातना का कोई भी स्रोत क्यों ना हो, हमें उससे निपटना आना चाहिए. That is what Peter's first epistle is all about. और इसी के विषय में तो पतरस की पहली पत्री है. Peter writes to encourage the believers who are suffering, especially those suffering for doing the right thing. और वहां पे जो पतरस है वो विश्वासियों को यह बात से प्रोत्साहित कर रहा है कि सही काम करने के लिए दुख उठाने के विषय में. In 1 Peter 1:1, पहला पतरस और पहले अध्याय के पहले वचन में it says in the Living Bible, from Peter, Jesus Christ missionary, to the Jewish Christians driven out of Jerusalem and scattered. और यहाँ पे लिखता है कि लिविंग बाइबल के अनुसार पतरस की ओर से जो प्रभु यीशु मसीह का मिशनरी रहा, यहूदी मसीहियों को जो यरूशलेम से निकाल करके हर जगह तितर बितर कर दिए गए. Firstly, Peter reminds these people they are elect sojourners. और सबसे पहली बात पतरस जो है इन लोगों को स्मरण दिलाता है कि आप लोग जो हो वो परदेसी हो या अस्थायी निवासी हो. People who don't have a permanent resident here in this world. This is an alien world. और ये ऐसे लोग जिनका स्थायी निवास नहीं है इस संसार में, और उनके लिए यह जो संसार है वह पूर्णतः एक परदेश के समान है. The implication was you don't belong to this world, so don't be surprised if the people of this world don't like you very much. और इसका जो निचोड़ है वो कहना चाह रहा था वह यह है कि तुम इस बात से आश्चर्यचकित मत होना जब इस संसार के लोग तुम्हें पसंद न करें, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो. In the third and in the same chapter in verse 3 to 5,
और उसी अध्याय में वचन 3 से 5 में Peter is wanting them to know, describes 3 things that they have. और पतरस चाहता है कि ये लोग कुछ चीजों को जाने, इसलिए कुछ बातों की वो यहाँ पे व्याख्या देता है। Firstly, he wants them to know for a certainty that they have a living hope. और पहली बात पतरस चाहता है कि ये लोग निश्चितता से जाने कि उनके पास एक जीवित आशा है। Secondly, he wants them to realize they got a heavenly inheritance. और दूसरी बात यह है कि वे लोग इस बात को जाने कि उनके पास स्वर्गीय मिरास है। And thirdly, that they have a secure salvation. और तीसरी बात यह है कि जो उनका उद्धार है वह सुरक्षित उद्धार है। And the third thing that Peter wants them to know, that is going to encourage us in times of trials, relates to the reason and the truth behind the trials in our lives. और जो तीसरी बात है और वह बात जो हमें प्रोत्साहित करेगी आज के समय में वह यह है कि इन परीक्षाओं के पीछे का उद्देश्य या कारण। In 1 Peter 1 verse 6, he says, "In this you greatly rejoice." और पहला पतरस 1 के 6 में कहता है, तुम इस बात में बहुत मगन होते हो, आनंद मनाते हो। What is this you are greatly rejoicing in? और यह कौन सी बात है जिसमें तुम बहुत आनंद मना रहे हो? What he has said in the previous 3 verses, a living hope, a heavenly inheritance, and a secure salvation. और यह वे बातें हैं जिसे उसने पहले के वचनों में कहा है, अर्थात एक जीवित आशा, स्वर्गीय मिरास और सुरक्षित उद्धार, इसमें आनंद मना रहे हैं। Says, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. In this you greatly rejoice, though now for Sorry, a little brother, while. can you repeat it? Yeah. So the verse is, in this you greatly rejoice, though now for a little और while, if need be, you have been grieved by various trials. और उसके बाद कहता है कि इसलिए तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी हो। This word, if need be, or in another translation is given, if necessary. Okay. और ये जो वचन है जहां पे लिखा गया यदि आवश्यकता पड़े या फिर यदि इसकी जरूरत पड़े, एक और अनुवाद में ऐसा लिखा है। They imply that from God's perspective, trials are indeed necessary. और वे इसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं वह आवश्यक हैं। Just for a moment, let us look at other verses that support this truth. Sorry, brother. Just for a moment, let us look at other verses that support this truth. और एक क्षण के लिए हम और भी वचनों को देखेंगे जो इस सत्य को प्रमाणित करते हैं या इस सत्य को सहयोग देते हैं। In 1 Peter 2:20 and 21, और पहला पत्रस 2 अध्याय 20 और 21 वचन में Peter is talking about doing good and suffering for it. और यहाँ पे पत्रस कह रहा है अच्छा काम करके दुख उठाने के विषय में। To this you've been called, to suffer for practicing righteousness. और यहाँ पे वो कहता है कि तुम इसी बात के लिए बुलाए गए हो कि तुम धार्मिकता को प्रदर्शित करो या अभ्यास करो। Even Jesus agrees with that in John 16:33. और यहाँ तक कि यीशु मसीह जो यूहन्ना 16:33 में जो कही गई बात है उसके साथ वो सहमत है। Says, in this world you will have tribulations. और वहां पे कहता है कि इस संसार में तुम्हें कष्ट होता है। Paul taught the same truth in Philippians 1:29. और फिलिपियों 1 अध्याय के 29 वचन में इसी सत्य को पौलुस ने सिखाया। To you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer for his sake.
और वहां पे वो कहता है कि तुम्हें मसीह की ओर से यह वरदान मिला कि ना केवल तुम उसके ऊपर विश्वास करो परंतु मसीह के कारण दुख भी उठाओ। That word, it has been granted to us. It's God's gift to us. और वहां पे यह जो शब्द है ग्रांटेड अर्थात यह परमेश्वर का वरदान उपहार है जो हमें दिया गया है। Suffering is God's gift to us. We don't like that. और जो दुख है, कष्ट है, वह परमेश्वर का उपहार है हमारे लिए। In 2 Timothy 3:12, it says, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. दूसरा तिमोथी 3:12 में हम पढ़ते हैं कि वे सब लोग जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वे सब दुख और कष्ट से गुजरेंगे। Many people memorize promises, to help them during the walk in the Lord. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वह प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं ताकि जब वे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो उस समय वह प्रतिज्ञाएं उनकी सहायता करे। This is a very good promise to remember. और यह एक बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है जिसे हम याद कर सकते हैं। In 1 Thessalonians 3:3, it says that no one should be shaken by these afflictions, for you yourself know that you are appointed to this. और पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। We have been appointed to afflictions. और हम क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं। The Bible says we were saved to suffer. This is part of word. The Bible says we were saved to suffer. This is part of the guarantee we receive when we trust in Jesus Christ. बाइबल कहती है कि हम दुख उठाने के लिए बचाए गए हैं और यह उस बात की गारंटी है जिस पर हम मसीह के ऊपर विश्वास जताते हैं। When we trust in Jesus Christ as savior from sin, and it comes in many different forms. और मसीह के ऊपर भरोसा करना कि वह हमारे पापों का उद्धार करता है और यह जो बात है अलग-अलग स्वरूप में आती है। In going back to 1 Peter verse 6, 1 Peter 1 verse 6, Peter says, अब पहला पत्रस 1 अध्याय के 6वें वचन में पत्रस इस रीति से कहता है, you have been grieved by them, by these trials. कि तुम लोग जो हो वह इस परीक्षाओं के कारण दुख में पड़े हो। Yes, if we are honest, we can admit that these trials hurt. और यदि हम ईमानदार हैं तो हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि यह जो परीक्षाएं हैं यह हमें चोट पहुंचाती हैं, कष्ट देती हैं। But Peter also puts them in proper perspective. परंतु जो पत्रस है वह इन बातों को एकदम सही दृष्टिकोण में ला करके रख रहा है। He reminds us that these trials are for a little while. और वह उन्हें स्मरण दिला रहा है कि यह जो कष्ट हैं यह थोड़े ही समय के कष्ट हैं। We want them over soon, but they may last a lot longer. और ये जो है ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे परंतु इनका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहेगा। As brother Robert just shared, some great men and women of God have spent most of their lives experiencing deep trials of various kinds. और जैसे भाई रॉबर्ट ने बताया कि जो परमेश्वर के कुछ महान स्त्री पुरुष हुए उन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय बहुत ही वेदना और तकलीफ से होकर के गुजारा। But no matter how long that lasts, it's only a little while when compared to eternity. और इससे कोई मायने नहीं रखता कि यह जो अवधि है दुख और तकलीफ की वो कितने लंबे समय तक चलती रहे, परंतु जब हम इसकी तुलना अनंत काल से करके देखते हैं तो बहुत ही छोटा सा समय हमें लगता है। It will be worth it all when we see Jesus. That will make a lifetime seem like a second. और यह पूरा योग्य हो जाएगा, यह पूरी चीजों का दाम छूटा जाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। The words, if need be, also indicate that the trials have a divine purpose. और ये जो शब्द हैं यदि आवश्यकता पड़े तो यह इस बात को दर्शाते हैं कि जो कष्ट है उनका एक अलौकिक उद्देश्य भी है। If we look at verse 7, यदि हम 7वें वचन को देखें,
The first word is that, a word that introduces purpose. और वहां पे जो पहला वचन है वह है यह, जो वहां पे एक उद्देश्य को बताता है. There are actually two purposes implied for suffering. और वहां पे दो उद्देश्य हैं जो कष्टों से जोड़ करके बताए गए हैं. That the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes. कि तुम्हारे विश्वास की जो वास्तविकता है वह आग से ताए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य होवे. The first purpose is to demonstrate the genuineness of our faith. और जो पहला उद्देश्य है वह है कि हम अपने विश्वास की वास्तविकता को प्रदर्शित करें. Our faith standing firm in the fiery trials. कि हमारा जो विश्वास है वह इस अग्निमय परीक्षा में मजबूती से खड़ा रह सके. Our faith, which Peter says is more valuable than gold in God's economy of things. और एक ऐसा विश्वास जिसे पतरस कहता है कि परमेश्वर की जो संपन्नता है, जो उसकी आर्थिक बातें हैं, उसमें वह बहुत बहुमूल्य माना जाता है. Through the trial, God is not tempting us to sin. और परीक्षाओं के माध्यम से परमेश्वर हमें पाप करने की प्रलोभन नहीं दे रहा है. God never does that, according to James 1:13. और याकूब 1:13 के अनुसार परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता है. But he is trying to demonstrate, to display that our faith is authentic, that it is genuine, that it is real. परंतु वह इस बात को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा विश्वास है वह वास्तविक है और पूर्णतः एक ओरिजिनल है. He is not trying, Jesus does not want to find out if it is real. He knows whether it is or it is not. और यीशु मसीह वह वास्तविक है या गैर वास्तविक है इसे पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि वह इसे जानता है कि वह कैसा है. It is to display that it is real, because real faith has eternal value in God's eyes. और यह इसलिए है कि वह इस बात को प्रदर्शित करे कि यह वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक ही जो विश्वास है उसी का तो अनंत काल में मूल्य होता है. God is demonstrating his glory to the world and Satan, that he has produced in us overcoming faith through these trials. और परमेश्वर जो है वह इस संसार को और शैतान के सामने इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि उसने हमारे अंदर इस जय पाने वाले विश्वास को उपजाया है. It is interesting that Peter likens the process to refining gold. और यह अद्भुत बात है कि पतरस जो है यहाँ पे उस प्रक्रिया को बताता है जिस प्रकार से सोना जो है वो साफ किया जाता है. As gold is heated and it melts, the impurities come to the top and it is removed. जब सोने को गर्म करके पिघलाया जाता है तो जो उसकी सारी अशुद्धि है वो ऊपर सतह पे आ जाती है पिघलने के बाद, और फिर वहां से उस अशुद्धि को बाहर निकाल लिया जाता है. Then the fire is increased and more impurities float to the top and is removed. और उसके बाद यह होता है कि जो अग्नि है उसकी जो ताप है वो और बढ़ाई जाती है, और जब वह और बढ़ाई जाती है तो और अशुद्धि ऊपर तैर कर आती है और उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है. And the refiner will know that the gold is pure only when he sees his reflection clearly in the gold. और वह जो सुनार है वो तब जान जाता है कि यह जो सोना स्वच्छ हो चुका है, साफ हो चुका है, जब वह अपनी आकृति को, अपने रूप को उस सोने में देख पाता है. This is what God does for us. और यही वह बात है जिसे परमेश्वर हमारे लिए करता है. He allows the heat of trials to be applied to our lives and he removes the impurities that come out of us. वह परीक्षा की ताप को, अग्नि को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है और उसके माध्यम से जो अशुद्धि आती है उसे वह हमारे जीवन से दूर करता है. By doing this, he is strengthening our faith and demonstrating that it is real. और ऐसा करने के माध्यम से वह हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है और यह प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा जो विश्वास है वह वास्तविक है. He then turns up the temperature and that is the part we don't like. और उसके बाद वह क्या करता है कि वह जो ताप है उसको और बढ़ा देता है, और यही वह बात है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं. We want to believe that he has got all our impurities out the first time.
और हम इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही बार में सारी अशुद्धि को बाहर निकाल दिया है. But he turns on the heat some more and he removes some more impurities, and faith gets even stronger, and it shows more conclusively that our faith is genuine. और जब वह ताप को बढ़ाता है तो और अशुद्धि बाहर निकलती है, उससे हमारा विश्वास और वास्तविक होकर के प्रकट होता है. Jesus continues to do this until the very character of Jesus Christ is reflected in our lives. और यीशु मसीह इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखता है कि जब तक उसके स्वयं का स्वभाव, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर निर्मित नहीं हो जाता है. That is his goal. That is how God displays his glory. और यही तो उसका स्वर्ण है, उसका सोना है, और इसी रीति से तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रदर्शित करता है. Unfortunately, some people who profess to have faith fail when the heat is on. और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे विश्वास होने का दावा करते हैं, जब ताप बढ़ाया जाता है तो असफल हो जाते हैं. Jesus talked about them in the parable of the sowers. और यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में इनके विषय में बातचीत किया है. They are like the seed that fall on stony ground with no roots. और ये ऐसे लोग हैं जो पथरीली भूमि पे गिरे, जहां पे उन्हें जड़ नहीं पकड़ पाए. They look real for a और वे while, बाहर से- but when trials and tribulation come, they fade away. और वे बाहर से तो असली से दिखाई देते थे, परंतु जब दुख, तकलीफ और कष्ट आए तो वे मिट गए. So don't be a stony ground Christian. और इसलिए आप एक पथरीली भूमि के मसीही ना बने. Hang tough through the trials. Show the world that your faith is real. और आप इस ट्रायल, इस कष्टों से होकर के गुजरे और संसार को इस बात को प्रदर्शित करके दिखाएं कि आपका जो विश्वास है वह वास्तविक विश्वास है. That is one of the purposes for God allowing the trial in the first place, to demonstrate the reality of that faith. और यही तो परमेश्वर सबसे पहले स्थान में करता है, कष्टों को ला करके, कि हमारे विश्वास की वास्तविकता को, असलियत को जाहिर करे. If God has permitted a trial in our life, he will give us the grace at the time of the trial, and he will not test us beyond our means. और परमेश्वर ने यदि हमारे जीवनों में कष्टों को अनुमति दिया है, तो वह हमें कष्टों के मध्य में अनुग्रह भी प्रदान करेगा, और वह इस बात को सुनिश्चित भी करेगा कि कोई भी चीजें मेरे सहने से बाहर ना होवे. The second purpose is to secure praise at the coming of Christ. और जो दूसरा उद्देश्य है वह है स्तुति को सुरक्षित प्राप्त करना मसीह के आने पर. We may be scoffed at here, or may even earn nothing more than persecution and opposition and rejection. और हो सकता है कि हमारा मखौल उड़ाया जाता हो, और यह कष्टों और तकलीफों के कारण स्वरूप हो. But when Jesus returns, the tables are going to be turned. परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो मेज है वो पलट दिया जाएगा. And faith is going to be rewarded, and we are going to enjoy praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ as a result of our genuine faith. और उसके बाद जो विश्वास है वह आदर, सम्मान और महिमा का कारण होगा, इसलिए क्योंकि मसीह के आने पर, क्योंकि यह वास्तविक होकर निकला है. I just want to share something from my own life. और मैं अपने जीवन से कुछ बातों को बांटना चाहूंगा. Some years ago, I went to sleep perfectly normal. और कुछ वर्ष पहले मैं एकदम सामान्य रीति से बोलने के लिए गया. I woke up paralyzed with pain from the neck down. और जब मैं सो करके उठा तो गले से नीचे लकवे से होकर के मैं उठा. The pain was absolutely unbearable. और जो दर्द था वो असहनीय दर्द था. Even to take a breath, because when you breathe, your chest expands. Even that expansion of the chest was excruciating pain. और जब श्वास लेना होता था वो भी इतना दर्दनाक था, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो जो हमारी पसली और छाती की जो मांसपेशियां हैं वो फूलती हैं, और जब मैं श्वास लेता था तो उससे असहनीय पीड़ा होती थी. I can tolerate a lot of pain, but I felt that I had come to the absolute limit of what I could bear.
और मैंने बहुत सारे दर्द को झेला था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी दर्द की चरम सीमा में पहुंच चुका हूं। And I want to be honest with the church. I told the Lord, Lord, I cannot bear this pain. Before I bring dishonor to your name, please take me away. और मैं ईमानदारी से कलीसिया के सामने कहना चाहता हूं कि मैंने प्रभु से कहा कि यह दर्द मेरे सहने से बाहर है, और इससे पहले कि मैं तेरे नाम की कुछ निंदा लेकर के आऊं, तू मुझे यहां से ले जा। But the Lord was merciful to me. He did not test me beyond my ability. परंतु परमेश्वर मेरे प्रति दयालु रहा, उसने मुझे मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं परखा। This pain has come, went away that time, and it has come back 6-7 times in my life. और उस समय यह दर्द चला गया, परंतु उसके बाद मेरे जीवन में यह दर्द फिर से 6-7 बार और लौट कर आया। But all through, I can testify that each time God was doing a refining process in my life. परंतु इन सारे चीजों में मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि परमेश्वर इनके माध्यम से एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मेरे जीवन में जारी रख रहा था। God had to break me. I was very self-reliant. I wanted to do things on my own strength. और परमेश्वर को मुझे तोड़ना था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर था और अपनी ही शक्ति के ऊपर भरोसा करने वाला था। I should take things for granted, normal daily things for granted. और मैं रोजमर्रा की चीजों को बहुत ही हल्के तौर पे लिया करता था। God showed me how helpless I was, how dependent I was on Him. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं कितना असहाय हूं और कितना ज्यादा मैं उसके ऊपर निर्भर हूं। Do you know, brothers, that sometimes when I get up and walk to the toilet and brush my teeth, sometimes when I think about it, tears roll down my eyes that I can actually brush my teeth on my own. और जब कई बार मैं सुबह उठ करके टॉयलेट जाता हूं या ब्रश करता हूं, तो कई बार मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं इस बात को सोचते हुए कि मैं अपने हाथों से आज मैं ब्रश कर पा रहा हूं। God has taught me to be grateful for the little things that we take for granted. और परमेश्वर ने मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवादी होना सिखाया, जिसे हम बहुत ही हल्के तौर पे लेते हैं। And He's taught me to take one day at a time and to be patient. और उसने मुझे एक दिन एक समय में जीना सिखाया और मुझे धीरजवंत बनना सिखाया। Another trial that we went through very recently, और एक और कष्ट जिससे हम हाल ही में होकर के गुजरे, it was a great emotional trial, a trial of relationships. और यह बहुत ही भावनात्मक परीक्षा थी जो रिश्तों से होती है। We suffered a great emotional trial some time back because promises were broken. और कुछ समय पहले हमने भावनात्मक कष्टों से इसलिए होकर के गुजरे क्योंकि जो वायदे थे वो टूट गए थे। Trust, love, respect was shattered. और जो भरोसा था, प्रेम था, सम्मान था, यह सब चकनाचूर हो गया था। Someone so close to us, we felt betrayed, as if someone had stabbed us in the back. और हमारा कोई इतना ही करीबी ने हमें ऐसा धोखा दिया, तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमारे पीठ पे चाकू भोंक दिया है। There was great anger and resentment building up inside. और एक बहुत ज्यादा क्रोध और चिढ़ हमारे अंदर उत्पन्न होने लगी। But God showed me that love must prevail. परंतु परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जो प्रेम है उसे प्रभावशाली होना है। We forgave, we forgot, and we learned to love and respect again. और हमने क्षमा किया, हम भूल गए और उसके बाद हमने फिर से प्रेम करना सीखा। Did the problem go? It came back again and it came back again. और क्या ऐसा करने से समस्या चली गई? वह फिर आई और उसके बाद फिर एक बार और आई। God had to teach us that lesson on love. क्योंकि परमेश्वर को हमें प्रेम के ऊपर वह पाठ सिखाना था। God taught us that to forgive, to trust, to build bridges, to love and respect again. और परमेश्वर ने हमें सिखाया कि प्रेम करो और सम्मान करो और फिर से उस जो पुलिया है उसका निर्माण करो। And the most important thing that God taught us is to forget. Don't look at the back, but look ahead.
और सबसे मुख्य बात जिसे परमेश्वर ने हमें सिखाया वह था भूल जाना, अर्थात कि अतीत को पीछे मुड़ करके ना देखो परंतु जो आगे है उसे देखो। You know, through this entire trial, God taught me, showed me what a great sinner, how big a sinner I was. और इस पूरे कष्ट के समय में परमेश्वर ने मुझे इस बात को दर्शाया कि कैसा बड़ा पापी मैं स्वयं हूं। The offending person's sins were nothing in front of mine. और उस चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति का पाप मेरे पापों की तुलना में कुछ भी नहीं था। And God in his mercy had forgiven me so much. Who was I not to forgive somebody else? और परमेश्वर ने अपनी करुणा में मुझे इतना अधिक क्षमा किया था, तो मैं कौन होता हूं दूसरों को क्षमा ना करने वाला। Our times here on earth and our suffering is just a preparation school for heaven. Sorry brother. Our time here on earth and our suffering is only a preparation school for heaven. और हमारा जो समय इस संसार में है और जो कष्ट है वह केवल एक तैयारी की पाठशाला है हमारी स्वर्ग के लिए। It is just a training ground for future glory. यह आने वाली महिमा के लिए एक प्रशिक्षण की पाठशाला है। You know, when we know that this is an opportunity to secure honor in the presence of our Savior, then it takes the sting out of suffering. और जब हम इस बात को जानते हैं कि यह जो कष्ट है कि हमारे मालिक के लिए आदर का कारण हो सकती है, तो ये इस कष्ट से हम स्वतंत्र विचारों से हम आजाद हो सकते हैं। It takes the sting out of the suffering, brother. और यह जो बात है वह कष्ट को हर लेती है, दूर करती है। It still hurts, but we are able to rejoice, knowing the true purpose of the trial. और वह फिर भी चोटिल करती है, परंतु हम उस परीक्षा के मापदंड को जान करके रह सकते हैं। You know, Paul says, consider it pure joy when you're faced with many trials. और Sorry, James says, consider it with. Sorry, brother, go ahead. याकूब कहता है कि इसे पूरे आनंद की बात समझो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर के गुजरो। James was calling upon people like us. When we look at trials in the right light, then we will consider it pure joy when we face many trials, because we know that God is preparing us for heaven through these trials and refining us. और याकूब इन कष्टों के माध्यम से हमें आह्वान दे रहा था कि हम कष्टों से ऊपर की ओर देखें, जिस रीति से परमेश्वर इनके माध्यम से हमें आने वाले स्वर्ग के लिए तैयार कर सके, प्रशिक्षित कर सके। I just want to conclude with some points that is very important, that we expect trials in the Christian life. Expect एक बात, कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीही जीवन में, वह यह है कि हमें कष्टों की आशा रखना है। And it is for a short time compared to eternity. और अनंत काल की तुलना में यह जो कष्ट हैं बहुत ही छोटे समय के होते हैं। God wants to remove these impurities so that His character is reflected in our lives. परमेश्वर इन अशुद्धियों को हमसे दूर करना चाहता है ताकि उसका स्वभाव हम में प्रदर्शित हो सके। God receives glory when we submit to these trials and overcome. और जब हम इन परीक्षाओं के अधीन होते हैं और जय पाते हैं तो परमेश्वर महिमा को प्राप्त करता है। And in our trials, always remember God is with us. और हमारी परीक्षाओं में आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। And He will not test us beyond our abilities. He will give us a way of escape so that we can bear our trials. और वह हमें सहने से बाहर कभी भी परीक्षा में नहीं डालेगा, परंतु वो इन सारी चीजों से बच निकलने के लिए एक मार्ग भी निकालेगा। Amen. आमीन।